اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائبر مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت آن کیمرہ سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے نے کھلی عدالت میں مواد آنے پر دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہونے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے مخالفت کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی، ضرور ہوگی، تاہم یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب عدالتی فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سماعت ان کیمرہ کیوں کی جائے گی؟ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کا فیصلہ تحریر کیا جو 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین کو فیض آباد دھرنے سے متعلق حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ فریقین کیس سے متعلق حقائق بیان حلفی کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں۔ تحریک انصاف نے دستاویزات میں عدالت سے استدعا کی ہے کہ اضافی دستاویزات کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ عدالت عظمیٰ میں جمع کروائی گئی دستاویزات میں تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اختیارات واضح کیے جائیں۔ قائد پاکستان مسلم لیگ نون و سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ اسی روز قائد نون لیگ ابوظہبی سے لاہور کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کی نجی پرواز 243 کی ایڈوانس بکنگ کروا لی گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نجی پرواز VIP 243 علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شام 4:25 پر لینڈ کرے گی۔ ملک بھر میں روز میں الیکشن نہ کرانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر درخواست میں صدر پاکستان الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرانا لازم و ملزوم ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاحال 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اب 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال اور امن و امان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس شام کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ ملک کی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ ملک میں حالیہ ہونے والے دہشت گردی پر بھی خصوصی طور پر اجلاس ہوگا۔ امریکی ڈالر آج کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 24 پیسے سستا ہونے کے بعد 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ سیشن میں ڈالر 287 روپے 74 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 393 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 46,625 پر آ گیا۔ اسی کے ساتھ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز میں بھی 100 انڈیکس 46,232 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 9,401 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ صحت کے مطابق بہاولپور میں 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 1,577 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 1507 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ملتان میں ایک ہی روز میں 761 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق شیخوپورہ میں 340، رحیم یار خان میں 329، اوکاڑا میں 306 افراد متاثر ہوئے ہیں۔
निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया है और मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तमीर प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का मुआयना किया और खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबे की साइट पर जारी कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि खालिद बट चौक अंडरपास की तामीर के दौरान बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट की जाएगी। मंसूबे की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चलास में जीप हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जीप को हादसा चलास के इलाके रायकोट के मकाम पर पेश आया। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जख्मी होने वाली 4 खवातीन हैं। जख्मी होने वाली एक खातून को जिगलोट जबकि 3 को चलास में मुंतकिल किया गया है। हादसे में मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। और अलीपुर चक्का में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि 2 की हालत शदीद तशवीशनाक है। 13 साल मोहम्मद हसीब और 14 साल मोहम्मद मूसा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि नहर लोयर चनाब के करीब तेज रफ्तारी के बाद सामने से आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गए। मोहम्मद हसीब और मोहम्मद मूसा मौका पर ही दम तोड़ गए। मोहम्मद मूसा 4 बहनों का इकलौता भाई था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत इन कैमरा समात पर फैसला महफूज कर लिया है। FIA ने खुली अदालत में मवाद आने पर दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब होने के खदशे का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मुखालफत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी, ताहम ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। जब अदालती फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों की जाएगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की ऑन कैमरा समात के लिए FIA की दरख्वास्त पर समात की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समात भी ऑन कैमरा हो सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त जमानत पर समात भी ऑन कैमरा की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात ऑन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुतल्लिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें, जिस पर प्रोसिक्यूटर शाखावर ने बताया कि सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DG ISI को साइफर कॉपी भेजी जाती है जिसे बाद में खत्म कर दिया जाता है, ताहम असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद रहता है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मुखालफत करते हुए दरख्वास्त को मुतजाद करार दे दिया। सुलमान सफदर बोले, हम तो आज अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाए जाने के हवाले से तैयारी करके आ गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी, अभी इस पर कमेटी काम कर रही है, ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्ट आपने देखी। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तें बहाल हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इकदाम कत्ल के मुकदमात में अदम पैरवी पर जमानतों के इखराज के ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार हो गए हैं। महफूज फैसला जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस जहांगीरी ने सुनाया।
अपडेट करते चले आपको कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 मई के 3 मुकदमात इस्लामाबाद में, एहतजाज के 3 मुकदमात तोशाखाना, जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दामी कत्ल के मुकदमात में अदम पैरवी पर जमानत के खराज के ट्रायल कोर्ट के फैसले कल अदम करार दे दिए गए हैं। महफूज फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी ने सुनाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तें बहाल हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 मई के 3 मुकदमात इस्लामाबाद में, एहतजाज के 3 मुकदमात तोशाखाना, जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में बैरवी पर जमानतों के अखराज के ट्रायल के कोर्ट के फैसले का अदम करार। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गुरदेजी। जी उमर, बताइएगा ये क्या तफसीलात आई हैं इस केस से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 फौजदारी मुकदमात में जमानत की जो दरख्वास्तें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें खारिज करने का जो फैसला था उसे कालअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर की हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन 9 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इन मुकदमात में 6 मुकदमात सेशन कोर्ट जबकि 3 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करेगी। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात जो है वो शामिल है। इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात भी शामिल थे और तोशाखाना, जालसाजी दफा 144 की खिलाफवर्जी और इक़दाम कत्ल का भी जो है वो मुकदमा शामिल था जो कि कोयटा में दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें जो है वो खारिज की थी। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उन्होंने जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू कर किया है और चेयरमैन की जो अहलिया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने लतीफ खोसा एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया और उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खदशा है कि मेरे शोहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। माजी में कैदियों को दी गई सहूलत जो थी उसके बरक्स चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाजत नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में अदालत से यह भी सजा की गई कि जेल में सहूलियात जो है उनकी फराहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए, अमल दरामद करवाया जाए। उमर अवैस गुरदेजी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी खेज की 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजी सानी केस का फैसला तहरीर किया जो 4 सफात पर मुश्तमिल है। अदालती हुक्मनामे में यह कहा गया है कि तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन केस से मुतालिक हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। अदालती हुक्मनामे में मजीद ये भी कहा गया है कि केस में तहरीरी जवाब 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएंगे और केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB, पेमरा और PTI ने भी मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जबकि दरख्वास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजार एजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया। दौरान समाअत केस से मुतल्लिक 4 सवालात भी उठाए गए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर इन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि इन्हें मालूम है कि क्या हुआ था। इन लोगों का कहना था कि फैजाबाद धरना केस में अदालत ने इनके नुक्ता नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैजाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ नंबर 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने फैजाबाद धरना के फैसले में कहा था कि कोई भी मुतासिरा फरीक आगे बढ़कर तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। और खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए दलाइल तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में
3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में ही तैयार करने की तनबीह जारी कर दी है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं, वो खुद दलाइल देना चाहते हैं, अदालत कुछ मोहलत दे दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप खुद लिख कर कह दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकता, तो ठीक है, माना जा सकता है। मैं तो समझता हूँ आमिर रहमान काबिल वकील हैं और केस में खुद दलाल दे सकते हैं, इतने सारे वकला मौजूद हैं। केस को 11:30 बजे वक्फे के बाद सुनेंगे। वक्फे के बाद समाअत के दोबारा आगाज पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर मौजूद है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे और इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और आपको बताएं कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की टिकट बुक करवा ली गई है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी रोज कायद नून लीग अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना भी होंगे। साबिक वजीर आजम की निजी परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। पार्टी जराये के मुताबिक निजी परवाज EY 243 इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 4:25 पर लैंड करेगी। मियां नवाज शरीफ की बुकिंग निजी परवाज की बिजनेस क्लास में करवाई गई है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के हमरा उनका स्टाफ और जाती मशीरान भी होंगे। जराये का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ के हमरा मोहम्मद वकार, डॉक्टर अदनान, मियां नासिर जंजवा होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी भी साबिक वजीर आजम के हमरा होंगे। अबू धाबी से इसी परवाज में मुतादिद लीगी रहनुमाओं और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी सीटें बुक करवा ली हैं। आपको बताएं कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की टिकट बुक करवा ली गई है। जराये के मुताबिक इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज चौधरी शहबाज आइन से। जी शहबाज, मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि कोई तब्दीली का इम्कान है या नून लीगी कारकुनों की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, सियासी कशीदगी के बावजूद मुस्लिम लीग नून साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट बुक करवा ली है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इसी दिन यानी 21 अक्टूबर को अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबका वज़ीर आज़म की वतन वापसी के लिए टिकट की एडवांस बुकिंग करवा ली गई है। पार्टी जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो कायद है निजी एयरलाइन के जरिए शाम 4:25 पर लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मियां नवाज शरीफ की टिकट की बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में करवाई गई है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के हमरा इनका स्टाफ और जाती मशीरान भी होंगे। जराये का मजीद बताना था कि मोहम्मद वकार, डॉक्टर अदनान, मियां नासिर जंजवा और सेनेटर इरफान सदीकी भी साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जराये के मुताबिक अबू धाबी से इसी परवाज में मुतअद्दिद लीगी रहनुमा और साबका अरकान पार्लियामेंट ने भी सीटें बुक करवा ली हैं। जी बहुत शुक्रिया शहबाज दराई तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत सोशल प्रोटेक्शन का इजलास हुआ है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखरे आलम, वाइस चेयरमैन सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड हारिस गजर, चेयरमैन PNG शकील मंगरेचू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, सेक्रेटरी खजाना कासिम जतोई, CEO सोशल प्रोटेक्शन समीउल्लाह शेख के अलावा दीगर भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध को हारिस की ब्रीफिंग दी गई। सिंध हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ मंसूबे भी शुरू किए हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की एक जगह लेकर अमल दरामद का प्रोग्राम भी बनाया गया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ या गुर्बत के खात्मे के लिए सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कायम किया गया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के तहत सोशल रजिस्ट्री करना। निगरान वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया कि 2 सैकड़ों की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। फूड सिक्योरिटी या भूख मिटाओ प्रोग्राम और बेनजीर वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स प्रोग्राम की स्टडी भी की जाएगी।
मदर चाइल्ड स्पोर्ट प्रोग्राम थर पार्कर और उमरकोट में शुरू किया है। गरीब खवातीन और उनके बच्चों की सेहत का बंदोबस्त भी किया गया है। इस वक्त 62,000 हामला खातून को रजिस्टर भी किया गया है। इन खवातीन और इनके बच्चों की सेहत के लिए 165 मिलियन रुपए भी दिए गए हैं। निगरान वजीर आला सिंध ने हिदायत की कि ये प्रोग्राम दीगर अजला में भी बढ़ाया जाए। कराची और हैदराबाद के गरीब इलाकों में हामला खवातीन और उनके बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तमाम जल्द दीगर 15 अजला में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कोट अद्दू में म्यूनिसिपल कमेटी लेबर यूनियन की सदारत के इंतखाबात का मैदान सज गया है। सदारत के उम्मीदवार सईद अहमद भट्टी और जुल्फ़िकार दोनों ही जीत के लिए पुरअज़्म। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। हमजा, कहिएगा जोशो खरोश किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोट अद्दू म्यूनसिपल कमेटी में लेबर यूनियन की सदारत के इंतखाबात का जो मैदान है वो सज चुका है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से जो है वो शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक आज जारी रहेगा। 2 ग्रुप्स हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें घोड़ा और झाड़ू जो है वो इंतखाबी निशान है। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो खासे पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और जीत के लिए जो है वो खासी जो है वो कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सईद अहमद भट्टी जो मौजूद हैं, जो सदारत के उम्मीदवार हैं। पहली बार जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस हद तक जो है पूरी उम्मीद है? पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है, किस तरह के इंतजाम है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मेरे भाइयों ने, मजदूरों ने, लेबर ने मेरा साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह इनके जो जायज़ मसाइल होंगे, जो कमेटी रिलेटेड मसाइल हैं, मैं दिन रात इनके लिए हाजिर हूँ। और सुबह से ये पोलिंग स्टार्ट है, इंशाल्लाह अच्छा माहौल है। टोटल कितने वोट हैं? टोटल 381 वोट हैं और इसमें अभी कास्टिंग ये पोलिंग जारी है। कुछ नहीं कहा सकता कितने हुए हैं, बहरहाल पोलिंग जारी है। बड़ा रश है, गहमा गहमी है और मैं इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मजदूर मेरे भाई मेरा साथ देंगे और इंशाअल्लाह मैं इनकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हूँ। मेरा पहला मौका है, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि मेरा साथ दें और इंशाअल्लाह जब ये मेरा साथ देंगे तो मैं इनके लिए इनकी बड़ी खिदमत करूँगा। इनके जो जायज़ भी मुतालबात हैं, प्रमोशन हैं, टाइम स्केल है और जो पिछले वो थे मामलात, वो तनख्वाहें नहीं मिलती थी। सबसे पहले मैं इनकी प्रायोरिटी मेरी तनख्वाह पर है कि मैं इनकी तनख्वाह जो है ना हर माह वक्त पर दिलवाऊँ, जो सबसे बड़ा मसला है। इंशाअल्लाह बाकी मैं इनके साथ हूँ, ये मेरा पहला मौका है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों से, अगर इन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे वोट दिया, मुझे बनाया, तो मैं इंशाअल्लाह इनके सारे काम प्रायोरिटी बड़ी पहली फुर्सत में करूँगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम। तहसील शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल और डीडी टीएचओ डॉक्टर रियान ताहिर और एमएस डॉक्टर अजहर हुसैन ने टीएचक्यू शोरकोट में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसमें 450 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलाम शबीर ताहिर जी। गुलाम शबीर ताहिर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ टीएचक्यू शोरकोट में। आप बताता चलो कि टीएचक्यू शोरकोट में भी जिस तरह पंजाब भर में पोलियो के जो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, शोरकोट में भी यहाँ पर टीएचक्यू शोरकोट में स्पेशल काउंटर लगाया गया और यहाँ पर आज पोलियो मुहिम का असिस्टेंट शोरकोट राजा मुगल साहब ने आज उसका इफ्तिताह कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर डीडीएचओ सब मौजूद है। एमएस साहब जो है, सर बताइएगा आज पोलियो डे है और कितने कैंप्स लगाए गए हैं और मोबाइल टीमें कितनी है और इसका प्रोसेस कितने दिन तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पोलियो के टीके खिलाए जा रहे हैं और इनके लिए हमारी मुख्तलिफ 460 टीम्स हैं, फिक्स टीम्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, हमारे टीएचक्यू में, हमारे बीएचयूज में, आरएचसी में और इसके अलावा हमारी ट्रांजिट टीम्स हैं जो मुख्तलिफ लारी अड्डों पर काम कर रही हैं और इसके अलावा मोबाइल टीम्स हैं। तो ये सारा 5 दिन का हमारा टोटल पीरियड है। 3 दिन हमारा पोलियो की कैंपेन है, 2 दिन हमारा कैचअप एरिया है, कैचअप डेज है और हमारी टारगेटेड जो पॉपुलेशन है वो 1,11,525 है और
इंशाल्लाह हम इस डेज में हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको कवर करेंगे। इंशाल्लाह इस कैंपेन को कामयाब करेंगे। सर देखिए, आज शोरकोट के जो एरियाज़ है, जो म्यूनसिपल कमेटी के अलावा जितने देही इलाके हैं, वहाँ पे कैंप्स वगैरह लगाए, ये मोबाइल टीम में काम कर रहे हैं। जी, मैंने बताया कि हमारी 3 तरह की टीम्स होती हैं। हमारी मोबाइल टीम्स होती हैं जो घरों में जाती हैं, जाके पोलियो के कतरे पिलाती हैं। ट्रांजिट टीम्स हमारे जनरल बस स्टैंड्स पे और छोटे छोटे अड्डों पे जाती हैं, और फिक्स टीम्स हमारे जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो ये तमाम टीम्स पूरी तहसील में इस वक्त काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो यही कहना है कि यहाँ पर 460 टीमें जब पूरी तहसील में काम कर रही हैं, जिसमें ट्रांसलेट भी दूसरी टीमें भी काम कर रही है। मकसद वालिदैन से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि बच्चों को घर रखें, और जो पैदाइश से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए आप जो उनको स्पेशली उनको जो पोलियो कतरे भी पिलाएं और विटामिन ए के कैप्सूल भी जरूर पिलाएं, ताकि आप अपने बच्चों। और आपको बताएं कि सुहावा के नवाही इलाके ढोका मीरबाज में दस्तकारी मरकज बराए खवातीन का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले मरहले में 50 से ज्यादा खवातीन दस्तकारी कोर्स करेंगी। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान कियानी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सुहावा के नवाही इलाके डोक मीरबाज में, जहाँ पर अल साबर वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी ख़वातीन के लिए सिलाई मरकज़ का इफ्तिताह किया गया है, जिसके लिए खुसूसी तावन उम्मीदवार बराए NA60 राजा अजीज़ खान ने किया है। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस इलाके में हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले सुग्याल गांव में तकरीबन 1.5 से 2 साल अरसे में तकरीबन वो चल रहा है, और ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को तो इतना ज़्यादा आपको पता है कि माशी मसाइल की वजह से हर जगह पहुँचना मुमकिन नहीं है, तो हम ज़ाती हवाले से हमारी माँ बहनों के लिए ये फैसिलिटी कर रहे हैं कि बजाय शहर में जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, आपको इस महंगाई के दौर में इतने अखराजात हो जाते हैं, तो देही इलाकों में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ की बच्चियाँ यहीं से सीख के तो अपने घर में जो है ना माशी वाले से अपने वालिदैन का हाथ बटाएंगी, और पहले जो इंशाल्लाह हमारी 50 बच्चियाँ यहाँ से सीखेंगी, और 2-3 माह के बाद जब वो सीख चुकी होंगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक छोटी शॉप रखेंगे, दुकान रखेंगे कपड़े की, और यहीं से फिर वो सिलाई करेंगी और ऑनलाइन उनको सेल करके उनको रेगुलर हर घर अगर 15-20 हज़ार कमाना शुरू कर गया, तब जो आके हमारा मकसद है कि सिर्फ सिखा के उनको घर बैठना नहीं, बल्कि वो रोज़गार करने के काबिल हो जाएँ और अपने घर बेहतर तरीके से चला सके। ये बिल्कुल इनका कहना है कि ख़वातीन की बेहतर ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए उनको हुनर दिया जाए, ताकि वो अपनी जो है आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर सेहत नासिर जमाल की काविशों से THQ अस्पताल मरी में गुज़िश्ता कई अरसे से बंद फ्री डायलिसिस मशीनों का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। तहसील मरी के लोग जो डायलिसिस के लिए पिंडी का सफर करने पर मजबूर थे, अब उनके डायलिसिस THQ अस्पताल मरी में ही होंगे। मरी THQ अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से मजीद अपडेट लेते हैं। जी रईस, बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं THQ अस्पताल मरी में मौजूद हूं, और आज यहां पर डायलिसिस मशीनों को फ़ाल कर दिया गया है। यहां पर वज़ीर सेहत जमाल नासिर और उनके साथ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा यहां पहुंचे, इफ्तिताह किया, और बाकायदा जो डायलिसिस मशीनें हैं उन्हें फ़ाल कर दिया गया। मेरे साथ एक पेशेंट यहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहां पर उन्हें तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं, और वो आने वाले जो मरीज हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी जरा बताइएगा। बहुत सहूलत है जी मरीजों के लिए, गुर्दों के मरीजों के लिए। मरी में 6-7 साल से ये मशीनें आई हुई थी, लेकिन अभी फ़ाल हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट की भी दिलचस्पी है, स्टाफ की भी। ऑपरेशन जो करते हैं सारा उसमें स्टाफ एक्सपर्ट है, लेकिन फ़िलहाल नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी है, तो वो डॉक्टर साहब भी आ जाएं और ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहे, तो ये मरी के जो लोकल पेशेंट हैं गुर्दों के मरीज, उनके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, पेशेंट की भी आपने बातें सुनी हैं, इनका भी यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो स्टाफ है वो तैनात होना चाहिए। 2016 में ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने THQ अस्पताल के लिए 6 डायलिसिस मशीनें दी थी जो फ़ाल ना हो सकी, और बिल आखिर निगरान हुकूमत ने इसे फ़ाल किया है, और आज बाकायदा इसका इफ्तिताह। जी बहुत
गंबट में सहाफी का आईना दिखाने पर चेयरमैन ऑफिस से बाहर हो गया। मेरे खिलाफ खबर क्यों चलाई, सहाफियों की किरदार कशी करने और धमकियां देने पर सहाफी बिरादरी सरापा एहतजाज है। गंबट म्यूनिसिपल कमेटी के सामने सहाफियों का एहतजाजी धरना जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलूच। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से, जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कुछ दिन पहले गंबट चेयरमैन के साथियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पे नाज़ेबा अल्फाज लिखना और सोशल मीडिया पर धमकियाँ देने की वजह से आज यहाँ पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मज़ीद इनसे भी बात करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन है, नाम निहाद मुलाजमीन है, जो खुद तो करप्ट हैं, जब सहाफ़ी निशानदगी करते हैं तो उनको इसलिए रखा गया है कि वो सोशल मीडिया पे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल सहाफ़ियों के खिलाफ करते हैं, ताकि जो निशानदगी हो बजाय उसके कि वो काम करवाया जाए, मगर काम तो नहीं होता। सहाफ़ी हो, सिविल सोसाइटी हो, जो भी निशानदगी करता है उसके खिलाफ नाज़ेबा इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करके उनके गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज सरापा सहाफ़ी एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ है म्यूनसिपल। कुछ दिन पहले हमने म्यूनसिपल कमेटी गंबट की नाअहली दिखाई। गंबट के मुख्तलिफ रोडों पर ड्रेनेज सिस्टम के जो निकाल हैं उनमें जो है ढक्कन ना होने की वजह से हमने एक कवरेज की। उस पर जो है म्यूनसिपल कमेटी गंबट के चेयरमैन के जो खास जो चमचे हैं उन्होंने जो है सहाफ़ियों की किरदार कशी की है और हमें धमकाया है। हम म्यूनसिपल चेयरमैन गंबट को ये बताना चाहते हैं, ना हम कभी डरें ना कभी झुके। आपके जो वाठे हैं उन्होंने जो हमारी किरदार कशी की है, सहाफ़ियों को बुरा भला कहा है। हम ज़िले इंतज़ामिया खैरपुर से मुतालबा करते हैं कि फिल फौर उन वाठों को जो है गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, वरना जो ये एहतजाज है ये धरने में बदल जाएगा इंशाल्लाह। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से जो सहाफ़ी के ऊपर किरदार कशी की गई है सख्त लफ्ज़ों में उनका मज़म्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इंतजामिया से जल्द इस बात का तहरीक लिया जाए और सहाफ़ियों के ऊपर जो जिन लोगों ने किरदार कशी की है, बयानबाजी गलत की है सोशल मीडिया पे, उनका नोटिस लिया जाए और SSP खैरपुर से मुतालबा करता हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। कैमरामैन साइंस टावरी के साथ और आपको बताएं कि शेखुपुरा रीगल सिटी में तालीम याफ्ता और स्किल्स रखने वाले हीरोज के लिए पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का रीगल सिटी में इनेकाद किया गया है। किन किन शख्सियात ने IT के शोबे को बाकायदा सनत के तौर पर फ़ाल करने का अज़्म किया और टेक्नोफोर्स मैनेजमेंट सहूलत से क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, बता रहे हैं महमूद बेग अपनी इस रिपोर्ट में। साबक वजीर कानून खुरम शहजाद विरक एडवोकेट सलमा तसद्दक एडवोकेट हाई कोर्ट नायब सदर सेंट्रल पंजाब इंसाफ लायर्स फोरम व डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और CEO टेक्नो फोर्स मैनेजमेंट फैसिलिटी शेख जमील अहमद और जुनेद नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान नस्ल चांद सितारों पर कमांड डाल सकती है। IT का शोबा बहुत ही वसी है, सबको मिलकर चलना होगा। जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नई जहद का तयन करना होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए तालीम याफ्ता और स्किल्स रखने वाले हीरोज को मैदान अमल में लाकर कामयाबियां समेटना होंगी। पाकिस्तानी हुनर व महारत में किसी से कम नहीं। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की दौड़ में सर पर दौड़ लगा रही है, तो पाकिस्तानी किसी से क्यों कर पीछे रह सकेंगे। ये प्रोजेक्ट हम सब का है, कोई फर्द वाहद नहीं। तकसीम होने वाले रास्तों को छोड़कर सबको एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रीगल सिटी में पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब के दौरान किया। शेख मोहम्मद जमील ने कहा कि इस्लाम हमें हमसायों के हकूक, घर से मस्जिद और ईमानदारी से रिज़्क कमाल कर हलाल रिज़्क खाने की तरगीब देता है। अपने तन मन धन को पाक व साफ कर लें, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बंदा काटे तो नहीं मरदा, खाते तो मरदा है। हमने IT के शुबा में मिलकर चलना है। 10 अफराद से काफिला लेकर चलेंगे और 10 अरब तक हमारी नस्लें इसकी हिस्सादार बनेंगी। हुण दीवे नाल दीवा जलाना है, रोशन पाकिस्तान बनाना है, जिसका बाकायदा आगाज माह जनवरी 2023 में शेखपुरा में किया जाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में IT एक सनत का रूप धार चुकी है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि IT की मुफ्त तालीमात को घर घर तक पहुँचाए, ताकि बेरोजगारी का CCPO ऑफिस लाहौर में रैंक पिकिंग लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने लाहौर डिवीजन के 5 SPs को रैंक्स लगाए। बतौर SP 3 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले SP से
एसपीज को भी रैंक लगाए गए। तकरीब में डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर और एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर भी मौजूद थे। रैंक हासिल करने वालों में एसपी ऑपरेशन सिविल लाइंस हसन जावेद भट्टी, एसपी कैंट ऑपरेशंस अवैस शफीक, एसपी ऑपरेशंस मॉडल टाउन अमारा शराजी, एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी मोहम्मद रजा तनवीर और एसपी डॉल्फिन ज़हीब नसरुल्लाह रांझा शामिल थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन के हवाले से अहम इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को बिजली कनेक्शन फराहमी के खिलाफ वर्किंग शुरू कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लेस्को को वर्किंग करने का मुकम्मल टास्क सौंप दिया है। लाहौर में जिले इंतजामिया LDA के कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को बिजली कनेक्शन फराहमी ऑडिट के जरिए ही शामिल किए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को बिजली कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पर दे दिए गए हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ने किस मदोशक के तहत बिजली हासिल की, वाज़ेह तयन किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्वस किसी फर्द को रियायत नहीं होगी। मुलव्वस मुलाजमीन पर भी FIR दर्ज होगी। लेस्को ने आम सार्फिन शहरियों के लिए शिकायत अजाला SOPs को बेहतर कर दिया है। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर इज्तमालियात हामिद मलही, चीफ इंजीनियर लेस्को एजाज अहमद व लेस्को अफसरान ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मॉडल टाउन लाहौर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और तहसील मॉडल टाउन राना इरसाल की सरबराही में तहसील मॉडल टाउन लाहौर के रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ अवामी खदमत रेवेन्यू खुली कचहरी में अवामी खदमत में मसरूफ अमल हैं। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की दरखास्त पर फौरी अमल दरामद के अहकाम भी जारी किए गए। अवामी खदमत रेवेन्यू खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतल्लिक शिकायत, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, डोमिसाइल और दीगर शिकायत का इजाला किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार मॉडल टाउन राना अरसाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DC ADCR लाहौर की खसूसी हिदायत AC मॉडल टाउन की ज़ेर निगरानी पर हर महीने खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है ताकि लोगों के मसाइल का फिल फौर अजाला किया जा सके। आवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब सुमेरा समत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान सूबे में कम उम्री की शादी के नुकसानात के बारे में आगाही मुहिम पर भी मुशावरत की गई। इजलास में सेक्रेटरी कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन नबीला जावेद, कम्युनिकेशन एंड SBC स्पेशलिस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अदील जाफरी और डिप्टी सेक्रेटरी हाफिज उबैदुल्लाह ज़करिया ने भी शिरकत की। सुमेरा समत का कहना था कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल की वकालत करने और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ हम आहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है। पंजाब में बच्चों की शादियाँ, निकाह की रजिस्ट्रेशन, तदादे अज़दवाज और मुतल्लिका मामलात को हल करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट के साथ मुतादिद इश्तराकी मंसूबे भी जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर की तरह लाहौर में भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की जानिब से तहसील शालीमार में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू अफसरान साइलिन के मसाइल सुन रहे हैं। मलिक आयान रिपोर्टर कोहिर नूर TV इस वक्त AC शालीमार अनम फातिमा के हमरा खुली कचहरी में ही मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है पंजाब भर में रेवेन्यू अवामी जो खुली कचहरियाँ उनका इनेकाद किया जा रहा है। उन खुली कचहरियों में जो साइलिन है उनके जो मसाइल हैं उनको बर वक्त हल करने की जो है मुकम्मल कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से अपने DC ऑफिस में जो खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं उनको हदायत जारी की गई कि वो असिस्टेंट कमिश्नर अपने ऑफिस के अंदर जो है खुली कचहरी का इनेकाद करें, वहाँ पर जो साइलिन आते हैं उनके बर वक्त जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त जो है AC शालीमार अनम फातिमा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, खुली कचहरी का इनेकाद किया आज, तकरीबन कितने मसाइल जो आए हैं और कितने मसाइल ऐसे हैं जिनके जो मसाइल हल हो चुके हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से हमारे पास 14 एप्लीकेशंस मेरे पास आ चुकी हैं। इसमें मुतफ़र्रिक़ किस्म के मसाइल थे। वैसे तो ये रेवेन्यू के खसूसी तौर पे मुनक़्क़िद की जाती है, लेकिन बल्दिया से रिलेटेड मसाइल, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड मसाइल भी इधर ही आते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वन स्टॉप
काइंड ऑफ प्लेस, तो उन मसाइल को भी हमने आज इंटरटेन किया है और बल्दिया के तमाम अफसरान को भी हदायत कर दी गई है कि इन तमाम खुली कचहरी के जो मसले हैं उनको एक्सपेडिशियस ग्राउंड्स के ऊपर रिजॉल्व किया जाए। जो मसाइल यहाँ पे अराजी रिकॉर्ड से रिलेटेड थे उनको इसी टाइम पे डिस्पोज ऑफ किया गया है और बाकियों के लिए टाइम लाइन मुकर्रर कर दी गई है कि जिसके अंदर इन तमाम केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि एसी शालीमार हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो साइलिन यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी जून का काम हो या किसी LWM से मुतलका किसी महकमे से मुतलका हो, तो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जा रही है। खुली कचहरी का मकसद है यहाँ पर जो साइल आते हैं उनके लिए दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का अजरा, इंतकाल का अजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड व दीगर जो मसाइल हैं जो कि साइलिन के हल नहीं होते, यहाँ पर जो खुली कचहरी में तमाम तहसीलदार जो तहसील शालीमार के हैं वो मौजूद हैं, पटवारी मौजूद हैं, उनके बर वक्त जो एसी शालीमार की जानिब से हदायत जारी की जाती है। और आपको बताएं कि रेलवे वर्कशॉप डिवीजन में हजारों मजदूरों को सितंबर के माह की तनख्वाह न मिल सकी। पीर के रोज रेलवे फ्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीजन के सदर महमूद अल आहिद की क़यादत में सैकड़ों मजदूरों ने तनख्वाह न मिलने पर शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन का यह कहना है कि अगर उन्हें तनख्वाह की फौरी अदायगी न की गई तो रेलवे हेडक्वार्टर्स का घेराव कर लेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त वर्कशॉप डिवीजन में ही मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा रेलवे मजदूरों की तनख्वाहों का इजरा न होने की क्या वजह सामने आ रही है? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ वर्कशॉप डिवीजन रेलवेज में, जहाँ पर मजदूर सैकड़ों मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। हमारे साथ प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीजन के सदर हैं महमूद अल अहद साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब, ये क्या सिलसिला चल रहा है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, बताएं जरा इस पे। देखें, ये तनख्वाहों का सिलसिला 1 साल से इसी तरह चल रहा है। लोगों ने बड़ी बर्दाश्त की है, बड़ा इंतज़ार किया है। किसी 1 महीने की बात होती है, 2 की बात होती है, 1 दिन की, 2-3 दिन की बात होती है। अब तो ये रेल की इंतजामिया ने एक वतीरा बना लिया है और इस मसले को हल करने की तरफ वो कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए रेल का मजदूर अब तंग आ चुका है। अब वो दमादम मस कलंदर और हर किस्म के अपने कानून कायदे को तोड़ने के लिए तैयार है। उसने जितना तावन किया था वो हद से ज़्यादा किया है, लेकिन रेल की इंतजामिया, चाहे वो DS लेवल का ऑफिसर हो या FNCO लेवल का हो या CO लेवल के लोग हों, ये बिल्कुल लोगों के इस मसले को हल करने में संजीदा नहीं है। इसलिए लोग एहतजाज के लिए क्या लाएमल है जी आपका? लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। इस वक्त DS के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। DS साहब, क्योंकि ये जितनी लाहौर में शॉप्स हैं, चाहे वो लोको है, कैरेज है, स्टील है, सिग्नल है और PWI है, इन सब के वो सरबराह हैं। इसलिए लोग अपने सरबराह से बात करने आए हैं और अगर उन्होंने लोगों को मुतमईन ना किया, इसका को हल ना निकाला, तो ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये कल को हेडक्वार्टर की तरफ, CO की तरफ, FNCO की तरफ और फिर उससे आगे भी बढ़ सकता है। लोगों का अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई इस हवाले से? देखिए, मिनिस्टर साहब तो एक आर्जी से मिनिस्टर हैं, चंद दिन के मेहमान हैं। वो 2 दफ़ा शॉपों में आए हैं, यही कह के गए हैं कि 2 दिन में तनख्वाह हो जाएगी, कहीं कह गए हैं 1 हफ्ते में हो गई, लेकिन उनको गए हुए आज 4 हफ्ते हो गए हैं, किसी तनख्वाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ऐसे मिनिस्टर के बारे में क्या बात की जाए? जी बिल्कुल, ये बात सुनिए, ये बात सुन रहे हैं, ये बात की है जैसे इन्होंने, और शदीद एहतजाज हो रहा है और इन्होंने कहा है कि जी अगर ये तनख्वाह नहीं दी गई तो उसके बाद फिर एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा और ये रुकेगा नहीं। ये 1.5 साल हो गया ये तनख्वाहें रेलवे की लेट है और रेलवे LWMC का क्लीन कैंपस इन्वेस्टर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी वेस्ट सेग्रीगेशन और सफाई के बारे में आगाही के लिए टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। गुलबर्ग टाउन में वाक़या लाहौर ग्रामर स्कूल में सफाई के बारे में आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO बाबर साहब की हिदायत पर डिप्टी CEO फहद महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूलों आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पोलियो, डेंगू शुबेशन पर काबू पाने के लिए इक़दामात और सेहत के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात का जायजा भी लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की खुसूसी रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन बेहतर बनाने की हिदायत की।
इजलास में 8 इस्लाम में रूटीन इम्यूनाइजेशन बेहतर बनाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। खसूसी मुहिम रावलपिंडी, गुजरांवाला, डीजी खान, बहावल नगर, बहावलपुर, झंग, गुजरात और पाकपतन में शुरू की जाएगी। इजलास में पोलियो, डेंगू या शोबे चशम पर काबू के लिए इक़दामात, सेहत के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को इंसदाद पोलियो मुहिम को भरपूर अंदाज में कामयाब बनाने और मिस्ड चिल्ड्रन की 100% कवरेज को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पोलियो और डेंगू के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। सेहत और तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आज शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 36 इस्लाम में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। खसूसी मुहिम के तहत लाहौर में रूटीन इम्यूनाइजेशन की शरह में 15.3% इजाफा हुआ है। शोबे चशम के मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में अशूबे चशम के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान सामने आ रहा है। डेंगू के हवाले से लाहौर और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर। शहरियों के लिए दाल रोटी खाना तक मुश्किल हो गया है। सूबाई दार हुकूमत में रोटी नान की सरकारी रेट लिस्ट को तनूर मालिकान ने तनूरों में ही झोंक दिया है। सादा रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। आए रोज रोटी नान की कीमतों में इजाफे ने मजदूर से एक वक्त की रोटी भी छीन ली। अरबाब इख्तियार की तरफ से अवाम को दिलासे के सिवा कुछ न मिल सका। निगरान हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। शहरियों का हुकूमत से नान रोटी की कीमत में कमी का मुतालबा करते हुए कहना है कि आटा तो पहले ही महंगा था, अब रोटी भी महंगी कर दी गई है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि रोटी की कीमतों में कमी की जाए। शहरियों का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। ये सर हम तो इंतहाई है तंदूर का काम जब से कर रहे हैं ना, मुश्किलों में ही आ गए। जब से ये गुमते चेंज हो रही है, आ रही है, जा रही 13,000 रुपए की 12,500 रुपए की बोरी होगी। हमें कहते हैं नान आप 27 का भेजो, 25 का भेजो, जबकि लेबर है, गैस के बिल वो अखराजात इन्होंने महंगे कर दिए, बिजली का बिल 10-10, 12-12,000 रुपये हम भर रहे। तो 3-4 तो हमारे ऊपर चलान दे दिए। ज़बरदस्ती कहते हैं कि रोटी या नान आप कम रेट में भेजो। पहले रोटी 15 रुपए की भेज रहे थे, हमें 1300 रुपए का तोड़ा मिल रहा था। अभी वही तोड़ा 2800 का मिल रहा है। हमें कहते हैं आप 17 रुपए की रोटी भेजो। हम किस तरह भेज सकते हैं डबल रेट आटा लेकर? तो हमारी तो ये गुजारिश ही है हुक्मरानों से कि हमारा भी कुछ हो जाए। हम और कौन सा काम ऐसा करे जो अपना गुजारा चलाए। 2-2, 1500 रुपया दिहाड़ हम एक बंदे को दे दे। पुलिस वाले जब देखो इधर आके कोई ना कोई वो उनकी भी ड्रामेबाजी हमारे साथ लगी होती है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो नीचे वाला तबका है, जो गरीब तबका है, वो पिसता ही जा रहा है और आमदनी का कोई जरिया इतना नहीं है। अब ये जो रोटी है ये 20 रुपए की हो गई है, तो अब ये भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो इस पे कोई हल निकालें और इसको सस्ता करें ताकि आम आदमी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सके और आराम से खाना खा सके 2 वक्त का। चीज़ सस्ती होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए। फिर दूसरी गरीब आदमी ना चक्की की तरह पिज्जा तनख्वाह की कुछ नहीं है। अब पेंशन देख लो किसी किसकी नहीं है, 25 है 30 है। वो बेचारा क्या करेगा? वो रोटी खाएगा या इसको खिलाएगा? और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।